Hey, hi, this is Rohit. Welcome back to our channel Rohit Chemistry. So today in this particular video, we are going to discuss about how to prepare or how to calculate the amount of salt that are dissolved in a 1 liter solutions to prepare 0.5 normal solution of the barium chloride, right? So let's start. So molecular formula of the barium chloride is basically BaCl2. As you can see that this barium is in +2 oxygen state, right? So the molecular weight of the barium chloride is basically 104.23, sorry, 208 actually, 208.23 gram per mole, right? And what will be the normal weight or equivalent weight? So as I told in our previous video, to calculate the equivalent weight, we divide the molecular weight by the n factor by number of electrons that are involved in redox reactions, or the displaceable hydrogen and hydroxyl ion, or the valency, right? So as you can see that this barium exists in +2 oxygen state, so the equivalent weight will be 208.23 divided by 2 is equal to 104.115 gram per mole, or we can say that 104.115 equivalent per mole, right? So what is the meaning of 104.115 equivalent or gram per mole? This is basically when we add 104.11 gram of salt or as a BaCl2 in a 1 liter water as a solvent, then the concentration of the solution will be equal to the 1n, right? Similarly, if we add 108.23 gram salt as a BaCl2 in the 1 liter water as a solvent, the concentration of the solution will be equal to the 1m, right? Our aim is to prepare 0.5 normal solution, right? It means half of this concentration. Then the required amount of the salt is the half of this 104.115. So the amount of the salt to prepare 0.5 normal solution will be 104.115 divided by 2 is basically equal to 54.057 gram per mole, right? So basically when 54.057 gram of the salt as a BaCl2 dissolved in a 1 liter water as a solvent, right, then the concentration of the solution is equal to 0.5 normal, right? So I hope this information will be helpful for you, right? So now let's discuss about whole procedure in a chemistry lab, right? So let's start. तो चलिए अब हम समझते हैं कि बेरियम क्लोराइड का जो है प्रैक्टिकली सॉल्यूशन किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है, राइट? तो जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में समझाया था, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन 1 लीटर बनाने के लिए हम यहाँ पे 1 लीटर पानी का यूज़ करेंगे, और जिसमें हम 62 ग्राम जो है आपका बेरियम क्लोराइड को यहाँ पे वेट करके मेजरिंग स्केल से, और फिर हम उसको सॉल्ट को इसके अंदर डिज़ोल्व कर लेंगे। तो मैंने इसको ऑलरेडी मेज़र कर दिया है, ये लीजिए, ये है बेरियम क्लोराइड सॉल्ट 62 ग्राम, जो कि इस 1 लीटर में डिज़ोल्व करके अपन इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे 0.5 नॉर्मलिटी का, राइट? तो अब सुनिए ज़रा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे मैं वॉल्यूमेट्रिक जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज़ नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ पे जो चिपका हुआ सॉल्ट होगा या फनल में जो चिपका हुआ सॉल्ट होगा, वो मुझे वापस उसके अंदर डालने के लिए मेरे पास में एक पर्टिकुलर साइन नहीं है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है इस बीकर के अंदर ले लेता हूँ, जिससे क्या होगा, जो चिपका हुआ पदार्थ है ना, उसको वापस वॉश करके मैं इसके अंदर मेकअप कर दूँगा, तो 1 लीटर, राइट? तो चलिए अब मैं क्या करूँगा, सावधानीपूर्वक एक क्लीन स्पैचुला के माध्यम से ये जो 62 ग्राम बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, आई मीन सॉल्ट है, इसको इसके अंदर डालूंगा, राइट? चलिए, तो इसको आराम से करना है। थोड़ा सा ये सॉल्ट आपके आउटसाइड ऑफ द कॉनिकल माउथ नहीं जाना चाहिए। जो बचा कुछ चिपका हुआ जो है, जैसे कि मैंने पहले बीकर में एक अलग सा लिया था ना, उसमें मैं इसको कर लूँगा, राइट? अब जो स्पैचुला है, इसके ऊपर कुछ चिपका हुआ पदार्थ है, तो इसको अंदर बीकर के अंदर डीप कर लेता हूँ ताकि वो भी जो है क्लीन हो जाए, राइट? ऐसे वॉश ग्लास को फनल से ही क्लीन कर दिया, तो ये क्लीन है। अब मैं इसको यहाँ रख सकता हूँ। अब मैं यूज़ करने वाला हूँ फनल, और फनल का जो है यूज़ करूँगा। अब इस वॉश ग्लास को यहाँ पे वॉश कर लेता हूँ।
इसके नीचे कुछ पदार्थ चिपका था, तो कोई इशू है नहीं, अंदर नहीं था। अब मैं इसको सारा जो लिया था लीजिए तैयार है आपका 0.5 नॉर्मल का 1 लीटर बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। तो इस प्रकार हम लैब में ये सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं बेरियम क्लोराइड, और जिसका उपयोग जो है हम सल्फेट और फॉस्फेट जैसे जो एसिड रेडिकल होते हैं उसका अपन जो है कंफर्मेशन टेस्ट के लिए अपन इसको यूज़ करते रहे। तो ऐसे और भी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री प्रैक्टिकल और केमिस्ट्री थ्योरी के रिलेटेड टॉपिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।